Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. Hello everyone. So in this video we will be discussing important current affairs 4th and 5th of फरवरी. काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा. चलिए स्टार्ट करें. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पुअर वर्कर्स, रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए, वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ग्रो करने के लिए, एंड वीमेंस को लखपति दीदीज बनाने के लिए. दैट मीन्स वीमेंस की 1 लाख रुपए सालाना इनकम हो सके, इसीलिए कुछ इनिशिएटिव लिए गए. और इसी के लिए अभी एक MOU साइन किया गया. नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने ये एक MOU साइन किया BRAC इंटरनेशनल के साथ, राइट. एंड बेसिकली क्या था, फॉर द इंक्लूजन ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. और ये मिशन क्या है, बेसिकली एक पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है. तो इसके अंडर बेसिकली देखें तो 100 मिलियन से भी ज़्यादा रूरल हाउस को, रूरल पुअर हाउस को यहाँ पे मोबिलाइज कराया जाएगा. उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी. एंड जैसे हमने देखा लखपति दीदीज, ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा जिसके अंडर ये जो लखपति दीदीज है इन पे फोकस किया जाएगा. 1 लाख रुपए पर एनम इनको इनकम प्रोवाइड कराने के लिए थ्रू समावेशी आजीविका. समावेशी आजीविका प्रोग्राम क्या है बेसिकली, जिसके अंडर लखपति दीदीज बनाने की बात की गई. ये क्या है, टू एम्स टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, सोशल इंक्लूजन एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू इंक्लूसिव लाइवलीहुड्स एट द लास्ट माइल. प्रोग्राम विल इंक्लूड होलिस्टिक प्रोडक्टिव इंक्लूजन स्ट्रेटेजीज टू इंप्रूव द एक्सक्लूडेड पॉपुलेशन. एंड डे NRLM प्रोग्राम के अंडर यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पे रीच करने की बात की जाएगी. ठीक है, मार्क करके चलेंगे इसको. नेक्स्ट आ जाते हैं. विच ईयर वॉज डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ नेवल सिविलियन बाय द इंडियन नेवी. इंडियन नेवी ने ईयर ऑफ नेवल सिविलियन कौन से साल को डिक्लेयर किया, तो वो रहेगा साल 2024 को, राइट. ईयर ऑफ नेवल सिविलियन इंडियन नेवी के द्वारा डिक्लेयर किया गया था. एंड यहाँ पर फोकस रहेगा टू एनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ सिविलियन वर्कफोर्स. यहाँ पे डिजिटल इनिशिएटिव्स लाने की बात की जाएगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाने की बात की जाएगी, इफेक्टिव एरियाज पे जैसे आपका जो डिजिटाइजेशन होगी तो वहाँ पे ग्रो करने की बात की जाएगी. एंड नेवल सिविलियंस की जो प्रोडक्टिविटी है, इफेक्टिविटी है, उसको बढ़ाने की बात की जाएगी. फिर इंडियन नेवी कमांड हेडक्वार्टर्स, डॉकयार्ड्स, इनको और डिजिटाइज किया जाएगा. ठीक है, तो इंडियन नेवी के द्वारा 2024 को डिक्लेयर किया गया ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस. इंडियन नेवी की अगर मैं बात करूं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन रहेंगे, एडमिरल R हरि कुमार.
नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन नेवी डिक्लेयर्ड 2024 एज द ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इशू गाइडलाइंस की फॉर द पायलट प्रोजेक्ट्स यूटिलाइजिंग ग्रीन हाइड्रोजन इन द शिपिंग एंड स्टील सेक्टर। हम जानते हैं कि अभी हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल शिपिंग इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे जो फ्यूल्स यूज किए जाते हैं शिप्स को रन करने के लिए वो आपका डीजल हो गया, राइट। तो अब डीजल को अवॉइड करके हम ग्रीन हाइड्रोजन पे शिफ्ट करने की यहाँ पे बात की गई ऑन अ पायलट बेसिस। पायलट बेसिस मतलब ट्रायल बेसिस पे। ग्रीन हाइड्रोजन होता है, रेड हाइड्रोजन होता है, ऑरेंज, ब्लू, ये सारी तरह की हाइड्रोजन होती है। डिफरेंस क्या होता है इनके मेकिंग प्रोसेस में कि इनको कैसे प्रोसेस किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या रहता है कि ये कार्बन रिलीज नहीं करता है बर्निंग पे, सिर्फ वाटर वेपर्स इसमें रिलीज किए जाते हैं, और जो बाकी हाइड्रोजन्स होती हैं उसमें कार्बन रिलीज किया जाता है एंड प्रोडक्ट के तौर पे। तो ये हमारा पॉल्यूशन आ जाता है इससे, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन से पॉल्यूशन नहीं होगा। इवन आप देख रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड आपकी ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड आपकी कार्स भी लॉन्च की जा रही हैं। जैसे अभी टोयोटा के द्वारा लॉन्च की गई थी एक, टाटा नेक्सॉन भी आपकी ग्रीन हाइड्रोजन पे लॉन्च की जा रही है। इवन ग्रीन हाइड्रोजन को काफ़ी इनिशिएटिव दिया जा रहा है कि ये एक फ्यूल का मीडियम बन सके। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे देखें तो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा शिपिंग सेक्टर में एंड स्टील सेक्टर में, एंड ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। एंड इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने की बात की गई टिल फाइनेंशियल ईयर 25-26, एंड यहीं पे 115 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई अंडर दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा अभी 4 मेडल्स को मिलाकर एक मेडल बना दिया गया है। उस मेडल का नाम क्या रहेगा? केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। आई रिपीट, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। इसको एक ही मेडल बना दिया गया है। किन 4 मेडल्स को एग्जिस्ट जो थे उनको कंबाइन करके? यूनियन होम मिनिस्टर स्पेशल ऑपरेशन मेडल, मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, असूचना कुशलता पदक एंड अवार्ड फॉर मेरिटियस सर्विस इन फॉरेंसिक साइंस। इन चारों मेडल्स को मिला के एक ही मेडल बना दिया गया जिसका नाम रहेगा केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। ठीक है, फिर यही आपका मेडल दिया जाएगा जिन्होंने एक काफी अच्छा अपना काम किया हो इन द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या यूनियन टेरिटरी, कंट्री, या फिर काउंटर टेररिस्ट एरिया जैसे बॉर्डर्स पर, करेक्ट। फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, या फिर आपके कोई नार्कोटिक स्मगलिंग हो रही है उसको कंट्रोल किया गया, उसको प्रिवेंट किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशंस में जिन्होंने काम किया हो तो उनको यहां पे इस मेडल से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सी मेट्रो वो पहली मेट्रो सर्विस बनी जिन्होंने ज्वाइन किया ओएनडीसी नेटवर्क को। ओएनडीसी क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो चेन्नई मेट्रो, चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, रेल लिमिटेड, CMRC, ये वो पहली मेट्रो बन गई है जो कि अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगी ओएनडीसी पे। आप यहाँ पे टिकट बुकिंग कर सकते हैं थ्रू दिस ओएनडीसी पोर्टल। इसी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टिकट होगी चेन्नई मेट्रो की वो परचेज की जा पाएगी थ्रू ओएनडीसी नेटवर्क सच एज रैपिडो से, नम्मा यात्री से एंड रेड बस से। एंड यारी ये फर्स्ट सेलर साइड टेक्नोलॉजी पार्टनर रहेगा फॉर चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। तो सिंपल टर्म्स में याद रखेंगे ओएनडीसी पे अभी वो पहली मेट्रो रेल सर्विस कौन सी है जो कि अभी लॉन्च की गई? चेन्नई मेट्रो। एंड इस पे आप टिकट बुकिंग की सर्विस ले सकते हैं थ्रू द ओएनडीसी नेटवर्क। नेक्स्ट आ जाता है, IRDAI के द्वारा एक अभी इंपॉर्टेंट न्यूज़, एक घोषणा की गई कि आयुष रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं जैसे आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इनके जो ट्रीटमेंट्स होंगे उनको इंक्लूड किया जाएगा आपके हेल्थ इंश्योरेंस में। सभी इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई हैं कि 1 अप्रैल 2024 से जो भी आपके ट्रीटमेंट में पहले आपका इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में आयुष से रिलेटेड जो भी आपका खर्चा होता था वो कवर नहीं किया जाता था, राइट। तो अब आयुष से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट होगा उसका जो भी पैसा लगेगा वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आपका बियर करेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, करेक्ट। ये गाइडलाइंस IRDAI के द्वारा दी गई हैं। फिर इसके अंदर क्या होगा? आपको अलग से सेटअप बनाना पड़ेगा, पूरा एक नेटवर्क सेटअप करना पड़ेगा कि जो भी हॉस्पिटल्स में आपके आयुष से रिलेटेड जो भी केयर सेंटर्स हैं, राइट, वहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी फ्रॉड्स हो सकते हैं, जो भी अब्यूज़ हो सकता है सिस्टम में, उनको ध्यान रखते हुए एक प्रॉपर सेटअप, एक सिस्टम बनाया जाए जिससे जो भी आपका इंश्योरेंस क्लेम होगा वो कंपनीज यहाँ पे अप्रूव करेंगी। IRDAI की बात करें तो चेयरपर्सन कौन रहेंगे? देवाशीष पांडा। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? हैदराबाद, तेलंगाना में। 1999 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। नेक्स्ट आ जाता है, इंडियाज UPI वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड वेयर। ये चीज़ मैं आपको बहुत टाइम पहले से बताता आ रहा हूँ।
पहले ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आई थी, एक बस डिस्कशन हुआ था कि आईफिल टावर पर पेरिस फ्रांस में इंडिया का यूपीआई जो फैसिलिटी है उसको यूज़ किया जाएगा, कि इंडियंस वहाँ पे, हम जानते हैं आईफिल टावर के ऊपर आपको पता होगा कि एक रेस्टोरेंट भी है, तो वहाँ पर पहले कैश चलता था या फिर डिफरेंट पेमेंट मेथड होते थे, लेकिन अब इंडियंस वहाँ पे यूपीआई का मदद से पेमेंट कर पाएंगे इजीली। करेक्ट। एनपीसीआई इंटरनेशनल ने यहाँ पे टाई अप किया, फ्रांस की एक पेमेंट नेटवर्क है जो कि है लायरा नेटवर्क, ये एक पेमेंट नेटवर्क है, इनके साथ टाई अप किया ताकि यूपीआई की फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड की जा सके फॉर पेमेंट, तो मार्क करके चलेंगे इसको। इसके अलावा देखें तो सऊदी अरेबिया, यूएई, भूटान, यहां पर भी यूके, हमें यहां पे यूपीआई का यूज देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड एलडीवीज टोक्यो लाइफ, इन्होंने पार्टनर किया टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक बैंकरेंस पार्टनरशिप यहां पे हुई। बैंकरेंस पार्टनरशिप क्या होती है? जब एक बैंक एंड एक इंश्योरेंस कंपनी के बीच में पार्टनरशिप होती है, जहां पे इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, वो सेल किए जाते हैं टू द कस्टमर्स ऑफ द बैंक। नेक्स्ट, फिच रेटिंग्स पर आते हैं। तो फिच रेटिंग्स ने अभी इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है फिस्कल ईयर 25 के लिए, वो कितना फॉरकास्ट किया? 5.4%। ये 0.3% ज्यादा है जो कि बजट में हमारा प्रेजेंट किया गया था 5.1% से। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। डिफरेंस कितना है? 0.3% का हमें यहां पे बजट देखने को मिलता है, जो बजट का टारगेट था। करेक्ट। मूविंग ऑन, यहां पे इवन बताया गया कि जो आने वाले टाइम में है ना, हम इस फिस्कल बजट को और कम कर देंगे। राइट, यहां पे इसको अराउंड 5% तक ले जाने की बात की गई। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर अभी हमने देखा कि फिच रेटिंग्स, इंडिया का इन टर्म बजट आया जिसमें फॉरकास्ट किया गया फिस्कल ईयर 25 का फिस्कल डेफिसिट एट 5.4% ऑफ द जीडीपी। अब देखो, जो ये इन टर्म बजट था ना, ये ऑफिशियल बजट नहीं होता है। करेक्ट, ये एक बजट होता है जो आपके, अभी जैसे हम जानते हैं इलेक्शंस होंगे, राइट, तो क्या पता अगर सरकार बदल जाए, तो सरकार जब बदलने की ऐसी चांस होते हैं तो उससे पहले एक इन टर्म बजट प्रेजेंट किया जाता है बिफोर द इलेक्शंस। जो फाइनल बजट आएगा वो बाद में प्रेजेंट होगा, तो ये आपका जस्ट एक इन टर्म बजट है जिसमें ज्यादा स्पेंडिंग्स की बात नहीं कही, लेकिन यहां से आप एक टेक अवे ले सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने की बात की जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा पैसा खर्च करा जाएगा एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। मूविंग ऑन, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पर, तो अभी मोदी एंटरप्राइज की चेयरपर्सन डॉक्टर बीना मोदी, इनको अभी अपॉइंट किया, फिर इनको सम्मानित किया गया आउटस्टैंडिंग बिजनेस वीमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से। राइट, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा इंडियन इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, इसीलिए यहां पर इनको सम्मानित किया गया। मोदी एंटरप्राइज चेयरपर्सन बीना मोदी को, डॉक्टर बीना मोदी को, इनको ऑनर किया गया आउटस्टैंडिंग बिजनेस वीमेन ऑफ द ईयर 2023 के अवार्ड से। करेक्ट, इनको सम्मानित किया गया ड्यूरिंग आईएसीसी कॉन्फ्रेंस जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी। आईएसीसी क्या है? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। राइट, इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे इनकी काफ़ी सारी कंपनीज हैं, राइट, जैसे बीना फैशंस, ईगो थाई, ईगो इटालियन एंड लग्जरियन लाइफस्टाइल बिजनेसेस भी इनके आते हैं। डॉक्टर बीना मोदी की बात करें तो ये प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑफ गॉडफ्राई फिलिप्स इंडिया एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, जो एक एग्रो केमिकल मैन्युफैक्चरर है। तो मेन चीज याद रखेंगे, डॉक्टर बीना मोदी आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 से इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाता है हु हैज बीन स्वॉर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। तो अभी आपको याद हो तो हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर थे, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से, क्योंकि इन पर अभी एक ईडी की रेड हुई एंड लैंड केसेस पे इनके ऊपर कुछ अभी केस चल रहा है। करेक्ट, तो इसलिए इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो फिर चंपाई सोरेन, इनको यहाँ पे अभी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है झारखंड का, एंड इनको 10 दिन यहाँ पे दिए जाएंगे कि अपनी इनको मेजॉरिटी प्रूव करनी है कि इनके साथ 41 मेंबर्स हैं। ठीक है, इनके पास 41 सीट्स रहेगी, मेजॉरिटी यहाँ पे इनको देनी पड़ेंगी एटलीस्ट 41 की। तो चंपाई सोरेन यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं झारखंड के, इसको मार्क करके चलेंगे। एंड हेमंत सोरेन ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? अगर ये देखा जाए तो जेएमएम पार्टी से बिलोंग करते हैं एंड ये को फाउंडर रहेंगे जेएमएम पार्टी के। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं चंपाई सोरेन, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। नेक्स्ट आ जाता है फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया $4 बिलियन का सेल ऑफ 31 MQ-9B ड्रोन्स का। MQ-9B ड्रोन्स को अभी डिलीवर किया जाएगा टू इंडिया
करेक्ट। एंड 31 ड्रोन्स को डिलीवर किया जाएगा जिसकी जो लागत रहेगी $4 बिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। करेक्ट। ऑलमोस्ट $3.99 बिलियन बोले तो 33,060 करोड़ रुपीस का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। राइट। एंड द डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी ऑफ द यूएसए इशूड द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशंस फॉर द सेम। अगर इस ड्रोन्स की बात करें हम तो ये ड्रोन्स मैन्युफैक्चर किए गए हैं जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल के द्वारा। 2 वेरिएंट्स में ये प्रोवाइड कराए जाएंगे, एक तो है स्काई गार्डियन और दूसरा रहेगा सी गार्डियन। राइट। ड्रोन है तो इनकी जो कैपेसिटी है दे कैन फ्लाई अप टू 40+ आवर्स। हेल टेक्नोलॉजी पे ये या हेल पे ये वर्क करते हैं। हेल क्या है? हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस एंड 450 kg ऑफ बॉम्ब्स को ये कैरी कर पाएंगे अलॉन्ग विद दैट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर ऑब्यूट्री के ऊपर। अभी रिसेंटली पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर नित्या आनंद जो कि डेवलपर हैं इंडिया के फर्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के, इनका रिसेंटली निधन हो गया। आई रिपीट, पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर नित्या आनंद जो डेवलपर हैं इंडिया के पहली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली के, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 99 लखनऊ यूपी में। करेक्ट। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2012 में इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। फिर आ जाते हैं पद्मश्री अवॉर्डी एंड वेटरन ओडिया एक्टर साधु मेहर। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, साधु मेहर, इनका निधन हो गया। इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। राइट। इनका जन्म 1940 में हुआ था इन ओडिशा एंड इनका भी 84 की एज में मुंबई महाराष्ट्र में निधन हो गया है। फिर इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2017 में इन द फील्ड ऑफ आर्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर। तो अभी रिसेंटली राधु रौत्री, ये वो पहली वीमेन चीफ सेक्रेटरी बन गई हैं उत्तराखंड की। इन्होंने रिप्लेस किया सुखबीर सिंह सांधू को जो कि 31 जनवरी 2024 को रिटायर हो गए। 1988 बैच आईएएस ऑफिसर हैं एंड ये पहली वीमेन बनी जिनको चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया उत्तराखंड का। मार्च 2024 तक ये इस पोजीशन में रहेंगी, फिर ये रिटायर हो जाएंगी। राइट। तो मार्क करके चलेंगे, पहली चीफ सेक्रेटरी या फिर हम बोले 18th चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड कौन अपॉइंट की गई जो कि पहली वीमेन चीफ सेक्रेटरी बनी? राधा रौत्री। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। NRLPS ने साइन किया एक MOU BRAC इंटरनेशनल के साथ फॉर इकोनॉमिक इंक्लूजन एंड सोशल प्रोटेक्शन ऑफ पुअर। इंडियन नेवी ने डिक्लेयर किया ईयर 2024 को एज द ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने गाइडलाइंस इशू की फॉर पायलट प्रोजेक्ट जहां पर हम ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करेंगे एज अ पायलट प्रोजेक्ट मतलब ट्रायल बेसिस पे इन द शिपिंग एंड स्टील सेक्टर। देन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंस्टीट्यूट की केंद्रीय गृहमित्रा दक्षता पदक, ये 4 मेडल्स को यहाँ पे कंबाइन करके एक मेडल बनाया गया है। देन चेन्नई मेट्रो वो पहली मेट्रो सर्विस बन गई जिन्होंने ज्वाइन किया ONDC को। IRDAI ने इशू की गाइडलाइंस टू इंश्योरेंस कंपनीज ऑन कवरिंग आयुष इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। देन इंडिया का UPI को यूज किया जाएगा आईफिल टावर में पेरिस फ्रांस में। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एल्डविस टोक्यो लाइफ के साथ पार्टनर किया, एक बैंकरेंस पार्टनरशिप करी ताकि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर किए जा सके टू द कस्टमर्स ऑफ ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिच रेटिंग ने इंडिया के इंटर्म बजट की जो फिस्कल डेफिसिट बताया वो है 5.4%, जो बजट का टारगेट था वो था 5.1% का, तो 0.3% यहाँ पे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है ऑफ द GDP। नेक्स्ट आ जाता है मोदी एंटरप्राइज की चेयरपर्सन बीना मोदी, इनको ऑनर किया गया आउटस्टैंडिंग बिजनेस वीमेन ऑफ द ईयर 2023 से। चंपाई सोरेन इनको अपॉइंट किया गया, इनको स्वॉन किया गया एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड एंड हेमंत सोरेन ने रेजिग्नेशन दे दिया, अभी हमने देखा था। राइट। इनको 10 दिन दिए जाएंगे टू प्रूव मेजॉरिटी। देन US स्टेट डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया $4 बिलियन सेल ऑफ 31 MQ-9B ड्रोन्स का टू इंडिया। एंड पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर नित्या आनंद जो कि डेवलपर है इंडिया के फर्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के, इनका निधन हो गया। पद्मश्री अवॉर्डी एंड वेटरन ओडिया एक्टर साधु मेहर, इनका निधन हो गया। देन राधा रौत्री, ये वो पहली वीमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है उत्तराखंड की। मार्क करके चलेंगे इंपॉर्टेंट। राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे लाया जा सके। नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। Which of the following additional services have not been notified by the Ministry of Finance at India's first IFSC जो कि GIFT सिटी में है, गांधीनगर गुजरात में। तो ये GIFT सिटी कहाँ है? गांधीनगर गुजरात में, और यहाँ पे पहला इंडिया का IFSC है। इसमें से कौन सी सर्विस ये प्रोवाइड नहीं करता? तो डाटा स्टोरेज की सर्विस ये प्रोवाइड नहीं करता, बाकी सारी सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं। अगर मैं डाटा सेंटर्स की बात करूँ, डाटा स्टोरेज के लिए एक हब सेटअप किया जा रहा है, वो है नोएडा यूपी में। अगर मैं बात करूँ पहला
AI सिटी इंडिया का कौन सा रहेगा, वो है लखनऊ। लखनऊ भी कहाँ पर है, यूपी में। नोएडा कहाँ पर है, यूपी में। ठीक है। जेवर एयरपोर्ट बन रहा है अभी, कहाँ पर है, यूपी में। अभी अयोध्या का हमने क्वेश्चन देखा था कि रामलला का मंदिर कहाँ बना, यूपी में। फिल्म सिटी बनाने की बात की जा रही है अभी, यूपी में। ठीक है, मार्क करके चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। इवन ग्रेनो, जिसको हम ग्रेटर नोएडा कहते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही डेवलपमेंट आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा। फ्यूचरिस्टिक सिटी यहाँ पे बनाने की बात किया जा रहा है। नेक्स्ट है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस जनरेटिव AI LLM कॉल्ड भारत GPT, जो कि है एक जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। अगर आपको याद हो, भारत GPT जियो ने IIT मुंबई के साथ टाइप किया था, IIT बॉम्बे के साथ, ताकि भारत GPT को डेवलप किया जा सके। तो सिमिलरली याद रखेंगे अभी, नेम द कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला जनरेटिव AI LLM कॉल्ड भारत GPT। ये CoreOver.ai के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। Which company has recently received the approval from Ministry of Petroleum and Natural Gas to establish a wholly owned subsidiary company for green energy and gas business? तो अभी रिसेंटली ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कि अपनी खुद की इस्टेब्लिश कर सकती हैं एक होली ऑन सब्सिडरी कंपनी जो कि ग्रीन एनर्जी एंड गैस का बिजनेस संभालेगी। नेम द इंडियन इजिप्ट जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज दैट वाज कमेंस्ड एट अंशास इजिप्ट इन जनवरी 2024। तो एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा, साइक्लोन 2 क्यों कह रहे हैं, ये सेकेंड एडिशन रहेगा इस एक्सरसाइज का, करेक्ट। एंड 2024 में हुआ, 22 जनवरी 2024 को ये स्टार्ट हुआ था, 1 फरवरी 2024 तक ये कंटिन्यू रहेगा, करेक्ट। एक्सरसाइज साइक्लोन 2, इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। मूविंग ऑन, नेम द इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया 2 न्यू प्रोडक्ट्स, सरल समाधान सुप्रीम एंड स्मार्ट समाधान सुप्रीम। सो ये जो 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, SBI लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा इनको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर्स हैव रिसेंटली वन बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर एंड बेस्ट वीमेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 22-23 रिस्पेक्टिवली। सो शुभनम गिल एंड दीप्ति शर्मा मेंस कैटेगरी में एंड वीमेंस कैटेगरी में इन्होंने यहाँ पे ICC बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर एंड बेस्ट वीमेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर का खिताब जीत लिया 2022-23 के लिए। एंड ये BCCI के द्वारा प्रेजेंट किए गए थे, ICC नहीं, BCCI के द्वारा प्रेजेंट किए गए थे। एंड जो बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर है ना, इसको एक और अवार्ड से जानते हैं, पॉली उमरीगर अवार्ड। नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 1070 करोड़ रुपए का विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर द एक्विजिशन ऑफ 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स को डिलीवर करने के लिए किसको, इंडियन कोस्ट गार्ड को। अभी किस कंपनी ने टाई अप किया है 1070 करोड़ रुपए का, कंपनी का नाम पूछा गया है, तो वो है मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 1070 करोड़ रुपए का, करेक्ट, और 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स यहाँ पे डिलीवर करने की बात की गई। एंड इनको कहाँ पर, मुंबई महाराष्ट्र में डेवलप किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा। नेक्स्ट, नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड स्वैग पेंशन प्लान विद कस्टमाइजेबल एन्युटी ऑप्शंस। तो ये स्वैग पेंशन प्लान लॉन्च किया गया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल्ड फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस released by RBI in January, the own revenues of panchayats account for only -% of their total revenue। मतलब जो पंचायत अपना रेवेन्यू जनरेट करती हैं, दैट इज जस्ट 1.1% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू, करेक्ट। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई, फाइनेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। अभी रिसेंटली किस सिटी में 9th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024। तो किस सिटी में हुआ, ये फरीदाबाद में हुआ। फरीदाबाद कहाँ पर है, हरियाणा में, राइट। 9th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ कहाँ पर, फरीदाबाद, हरियाणा में, करेक्ट। नेक्स्ट,
किस कंपनी ने अभी रिसेंटली साइन किया एक टर्म शीट एग्रीमेंट विद IHI कॉर्पोरेशन टू सप्लाई 0.4 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम ऑफ ग्रीन अमोनिया फ्रॉम ओडिशा टू जापान। तो इंडिया से हम जापान 0.4 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन अमोनिया को सप्लाई करेंगे। इसके लिए किस कंपनी ने अभी एक IHI कॉर्पोरेशन के साथ टाई अप किया? वो है ACMA ग्रुप ने टाई अप किया IHI कॉर्पोरेशन के साथ फॉर दिस सप्लाई ऑफ 0.4 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन अमोनिया टू जापान। इससे क्या होगा? 54 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम एटमॉस्फेयर में रिलीज करते थे उसका रिडक्शन हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगी, वो हम एमिशन नहीं होगा। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह, इन्होंने इनॉग्रेट किया एंड एड्रेस किया पांचवा इंटरनेशनल एंड 44th नेशनल क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस एट नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। और ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी या यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? गांधीनगर, गुजरात में। तो ये 5वां कॉन्फ्रेंस था इंटरनेशनल लेवल पे और 44th कॉन्फ्रेंस था नेशनल लेवल पे ऑफ क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस, और ये कहाँ पर हुआ? NFSC में, जो कि गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट, इन जनवरी सेबी ने रिलीज किया एक फ्रेमवर्क फॉर ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर्स ऑफ टू एम्प्लॉयज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म सच एज BSE एंड NSE। एज पर द फ्रेमवर्क जो मैक्सिमम बिड अमाउंट रहेगी शैल बी हाउ मच पर? सो जो मैक्सिमम बिड अमाउंट रहेगी 5 लाख रुपए रहेगी, एंड जो अमाउंट अलोकेट किया जाएगा ऑफ द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स जो अलोकेट किए जाएंगे ईच एम्प्लॉय को विल बी अप टू 2 लाख रुपीज। करेक्ट। एंड ये जो ऑफर फॉर सेल है एम्प्लॉयज का विल बी ऑन T+1 डे एंड अलॉन्ग विद द रिटेल कैटेगरी अंडर अ न्यू कैटेगरी कॉल एम्प्लॉय। ठीक, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अमाउंट क्या रहेगा? 5 लाख। मैक्सिमम बिड अमाउंट शैल बी 5 लाख। हु हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद द भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पोस्ट ह्यूमसली, मतलब इनकी मृत्यु के बाद इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया, और वो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार एंड सोशल वर्कर कर्पूरी ठाकुर जी। ठीक है, एंड याद रखेंगे 49 रेसिपिटेंट बने भारत रत्न के, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, एंड 15th रेसिपिटेंट जिनको पोस्ट ह्यूमसली, मतलब इनकी मृत्यु के बाद यहाँ पे सम्मानित किया गया। अभी आडवाणी जी को भी याद रखेंगे, अनाउंस किया गया कि इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट, CCI हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ अराउंड 38% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ डैश कंपनी बाय JSW वेंचर सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड। तो JSW वेंचर सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड ये 38% एक्वायर करेंगे MG मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। राइट, MG मोटर्स आपको पता है, MG मोटर्स की कार्स आती हैं जैसे हेक्टर हो गई। ठीक है, इसमें 38% एक्वायर करेंगे। नेक्स्ट है RBI, इन्होंने रिवाइज किया PIDF स्कीम को, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम को। इसके अंदर आपने देखा होगा हर दुकान पे आपके बारकोड के साथ साथ एक साउंड बॉक्स लगा होता है। राइट, वो साउंड बॉक्स क्या काम का होता है कि जब भी आप पेमेंट करेंगे तो जो आपका ऑनर है उनको पता लग जाए कि आपने पेमेंट कर दिया, एंड वो वॉइस करता है। तो ऐसे साउंड बॉक्स को लगाने के लिए ना सरकार इंसेंटिव्स देती है, सरकार ही यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। तो ये है आपकी PIDF स्कीम, करेक्ट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इकोसिस्टम डेवलप कर सकें। सरकार के द्वारा ये कुछ यहाँ पे अमाउंट प्रोवाइड कराया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि RBI ने रिवाइज की PIDF इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को, राइट, एंड एक्सटेंडेड द डेडलाइन अंटिल डैश। तो डेडलाइन कब तक एक्सटेंड कर दिया है? तो 31 दिसंबर 2025 तक इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स हैव रिसेंटली वन सिल्वर मेडल इन द मेंस डबल ऑफ यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2024 जो न्यू दिल्ली में हुआ? तो क्या नाम है उन डबल्स का? वो है सात्विक साईराज रानीक-रेड्डी एंड चिराग सेठी। इन्होंने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता। हम कह सकते हैं ये रनर अप थे, इनकी सेकेंड पोजिशन आई यहाँ पर। और ये जो यूनेक्स सनराइज इंडिया था, लोकेशन क्या रहेगा इसका? ये न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्ट द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशिया कप 2024 इन जनवरी 2024? तो याद रखेंगे कतर में हमने अभी AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियन कप 2024 का होस्ट किया जनवरी में। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड पर, सिल्वर की फाइन्स पर एंड कॉइन्स पर ऑफ प्रीशियस मेटल्स इंक्रीज कर दिया है
टू 15%, जो कि पहले थी 10%। तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, कितनी हो गई अब? 15%। हाउ मैनी मेडल्स हैव वन बाय इंडिया इन द एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 हेल्ड एट कुवैत इन जनवरी 2024? तो अभी एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में इंडिया ने 8 मेडल जीते, चाइना ने 13 मेडल जीते। चाइना की पोजीशन रही फर्स्ट, इंडिया की पोजीशन रही फिफ्थ। राइट, मार्क करके चलेंगे ये सारी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, और एक चीज और, जो इसका लोकेशन थी कहां पर हुआ था? कुवैत में हुआ था एशियन शॉटगन चैंपियनशिप। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2024 दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 24th of January 2024? सो थीम क्या रहेगी? लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। ये आपकी थीम रहेगी यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की, जो कि 24 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? फर्स्ट टाइम 2019 में। नेक्स्ट, एज ऑफ जनवरी HSBC एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रिडिक्टेड कि जो इंडियन के बॉन्ड्स हैं दे विल अट्रैक्ट ऑलमोस्ट $100 billion ऑफ फॉरेन इनफ्लोज ड्यू टू ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स इंक्लूजन। इनको जब ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूड करेंगे तो HSBC एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने प्रेडिक्ट किया कि इंडियन बॉन्ड्स अट्रैक्ट करेंगे ऑलमोस्ट $100 billion का फॉरेन इनफ्लोज। किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक 5,336 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू प्रोक्योर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस फॉर द इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस को प्रोक्योर करने की बात की गई, जिसके लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 5,336 करोड़ रुपए का। किस कंपनी के साथ? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। राइट, और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, याद रखेंगे, ये जो मैन्युफैक्चर करेंगे इन इलेक्ट्रिक फ्यूजेस को वो करेगी पुणे महाराष्ट्र में। एंड इसी के साथ साथ एक नागपुर में भी प्लांट सेटअप किया जा रहा है, वहाँ पे इन दोनों जगह पर ही आपके इलेक्ट्रिक फ्यूजेस को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली स्worn इन एज द 14th चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? राजस्थान के 14th चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो कौन बने अब 14th चीफ मिनिस्टर? वो है भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा किन को रिप्लेस करेंगे? तो ये अशोक गहलोत को रिप्लेस करेंगे, जो कि 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मध्य प्रदेश राजस्थान के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा एक लोन अग्रीमेंट साइन किया गया, कितनी जैपनीज येन का? टू कंटिन्यू फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ 82 किलोमीटर लॉन्ग दिल्ली मेरठ RRTS सिस्टम को यहाँ पे डेवलप करने के लिए। अभी कितना अमाउंट यहाँ पे लोन अग्रीमेंट साइन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ? तो अमाउंट रहेगा ये आपका 37 बिलियन जैपनीज येन। इसको कन्वर्ट करें तो ये अमाउंट आ जाता है $250 मिलियन। ठीक है, 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली मेरठ RRTS सिस्टम को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है अब्देल फतेह अल सीसी। इनको रिलेक्ट कर लिया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट फॉर द 3rd टर्म, तीसरी टर्म के लिए इनको यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला, थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी न्यूज में था और ये क्या बना है, नंबर भी बताओ उसका। दूसरा, सी केयर्स वेब पोर्टल, ये भी न्यूज में था, ये किस सेक्टर से एसोसिएटेड है? फुल फॉर्म बताओ सी केयर्स की। तीसरा, मिसोलिथिक एरा रॉक पेंटिंग अभी डिस्कवर किए गए विच स्टेट में? चौथा, डिजिटल डिटॉक्स, ये एक इनिशिएटिव है जो कि न्यूज में था, इज एसोसिएटेड विद स्टेट। एंड पांचवा, फेंटेनिल, ये भी न्यूज में है, ये क्या है? तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, नेबर्स, कजन्स सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म जहां पर हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड यू कैन फॉलो अस ऑन द YouTube channel as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official.
In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.